Hi everyone. Uh, I can only see Manisha's face. If you can open your screens, it would be very, morale boosting for me. But I can understand if you're not very comfortable doing this. But I welcome you all to this program and I welcome you all to this today's show. But let me start by first by saying that I'm no expert here. I am just a fellow contestant from a previous cohort, and about this time last year. I was also, attending these meetings and, refining my pitch deck and, lining for, uh, you know, fundings and all that stuff. So thanks to Pusa Dean, Dr. Amarjeet, Dr. Akriti, and, Manisha for inviting me here. Uh, as she's already said that we are into a phygital mode, which is basically physical plus digital mode, and we do a lot of things. And yes, we are an ecosystem enabler for agriculture and allied sector. Uh, so I think it's a good platform to talk about the customer acquisition, the hows and the whys and the whens and the how to do it, why to do it, why it is important, and how do we do it. I understand a lot of you are already aware about this subject, and you already know about the various customer acquisition techniques and stuff like that, how we do it and why we do it. But I thought let's dwell upon it and let's see each other's and let's pick each other's brain and see what all you have to say about it and what is it that my journey and my experience have told me about it. So it's I'd like to build a two-way communication. I'd like you to chip in. I'd like you to ask. I'd like you to correct me if you think that I'm going somewhere sideways, and uh, you know come up with your suggestions, your ideas, and your questions, and I'll be happy to answer it. Uh, Before we start, I just wanted to ask and throw a simple question about if some of you can tell me about your perspective and your understanding of what is customer acquisition and what is it that we are going to talk about it here. Anybody from you, yeah. Let's just understand. Even Hindi, English, just language में comfortable हो. Let's understand that, yeah. Anybody. And please don't take it as a session कि यार आप लोगों का कोहार्ट है सेशन है 1 घंटा बैठना ही है सुनना ही है. Let's not do that, yeah. Let's do some lively chat. Let's reach to some point. Let's reach to some consensus that okay, what is it that we wanted to do? What is it that we wanted to do? And since it's a Pusa cohort, I understand everybody is from the agriculture and allied sector. So let's understand the customer acquisition, the customer itself in the agri and allied space, how the acquisition happens through your eyes, through your lens, through your experience, and then we'll take this journey forward. Please, anybody. Customer acquisition is something key to bring customer to your place, to motivate him to buy your product. And most important thing is customer acquisition is repurchase. One-time purchase is very common and it can achieve by anyone. But if the customer buy again the same thing, repurchase model, then it's the correct definition of customer acquisition as per me. All right. So you've said two things. One is that somebody is going beyond the marketing reach and doing some action to buy your product and services. And correct me if I'm going right here. And second is that it's a repeatable customer. It's not one-time wonder, but it's a repeat customer. It's not a random thing. It's kind of a process. All right. Yes, Understood. it's kind of process. And the third more important thing is that your cost of customer acquisition is less than your profit. कस्टमर एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो आपके प्रॉफिट के साथ होनी चाहिए. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम बहुत बार ये गलती करते हैं, हमारी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है प्रॉफिट मार्जिन से. देन इट्स नॉट द वर्थ ऑफ कस्टमर एक्विजिशन. वन टाइम आपने परचेज किया, ऑफर दिया, उसने परचेज कर लिया, उसने रिपर्चेज भी नहीं करी, और हमारी जो कॉस्ट एक्वायर मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो हम पूरी भी नहीं कर पाए, एंड उसने किसी और को हमें स्विच कर दिया. Absolutely. That's the तीन things we always consider in our mind while we talk about customer acquisition, as per me. Maybe I'm wrong. Absolutely. No, you're not wrong. See, the science and the art and the science behind customer acquisition is how do you devise your customer strategy and how do you devise your marketing plan, and what are your measured outcomes that you wanted to achieve. When lowering a customer acquisition cost is one of them, of course we're going to cover all that stuff. But thank you so much, Anamika. Thank you so much. Yes, I see a raised hand from Saloni. Yes, Saloni. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, Saloni, you're audible. Good afternoon. Yes.
Good afternoon, Rahulji. Good afternoon, everyone. Adding to what just Namika ji said, हमारा dairy linked sector है, and we are into animal nutrition. So customer acquisition, according to us, or our model is that the fact that we are currently in a B2B space. तो हमारे लिए कस्टमर अक्वायर होना मतलब जो भी हमारा पार्टनर है वो हमारे साथ जुड़ जाना एंड हमारी सेलिंग में मदद करना, as she rightly said. So what I'm looking forward to is, as our journey has just begun, we would like to understand from you the means and ways of doing customer acquisition considering the cost when it's a B2B business. क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं सामने वाले की टीम में, तो उसकी टीम में हर किसी को कन्विंस करना या मिल्क प्रोक्योरमेंट को कन्विंस करना एंड देन एक एक स्टेप आगे बढ़ना. सो वी हैव स्ट्रगल्ड विद दिस एंड वी हैव गॉट सम आंसर्स, बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड दैट डायनामिक्स फ्रॉम यू. So not just B2B, but B2C and B2G as well. Saloni, what we'll try to राइट do is we'll understand the customer acquisition process in itself, why it is important, how it is to be done, राइट राइट. how we do the customer acquisition process, what are the channels, how do we plan the market, customer acquisition plan, the marketing plan, what all राइट. needs to be done. And in between, we'll cover everything which is need to be done for both B2B and B2C. Sounds good. And Thank you. Yes. if there is anything which we missed or you think that we need to be covered, we can cover offline as well. But I'll try and do it in this session only. But if Right. time Thank permits, you. okay. Okay. Yes. Looking Thank you. forward. Yes. Anyone else? You guys can see my screen, right? I'm just looking for an affirmative answer that you guys can see my screen. Yes, sir, we can. Yes, Yeah, sir, we sure. can. All right. Thank you. So anybody else who wants to say something, or should we go ahead and cover the Yes, sir. basics of the customer acquisition and all that? Yes, ma'am. Yeah. Ranju Minhas. Yeah. Yeah, good afternoon all. हमारे experience में जो basically I've been working on wet waste management of homes. So where I've developed a compost bin plus micro segregated waste and then products out of it. So जो हमारे इसमें काम किए वो है कि referrals from the customer further अपने relatives में और मतलब वो recommend करते हैं. और दूसरा हमारे काम में हैंड होल्डिंग बहुत काम किया है. जैसे कोई कस्टमर हमें मिला 5 साल पहले तो वो अभी भी हमसे जुड़ा हुआ है. तो कई 2 साल पहले किसी ने अटेंड किया तो 2 साल बाद वो किसी को बोलते हैं या खुद लेने आते हैं. तो ये एक कस्टमर का क्या ट्रस्ट बिल्डिंग, सो दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट. हमारे बिजनेस तो छोटा सा है लेकिन दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस. Ma'am, with all due respect, no business is chota. It takes all the guts and all the time and energy. But coming back to your point, the customer delight or the repeat customer becoming your brand ambassador is something which is very important and vital to cut down on your marketing cost and get a repeat customer. We'll try and cover that in the presentation as well. But very well put. Thank you. Thank you. All right, with your permission, let's move forward. So we are here to cover the art and science of the customer acquisition. But the most important and fundamental thing attached to it is why and how the math has to always work out. I remember the earlier participant was saying that customer acquisition cost, marketing profit se kam hona chahiye. Very well put. The whole thing behind this, entrepreneurial journey is earning profit. Forget about customer acquisition, your marketing, segmentation, and stuff like that. You wanted to be an entrepreneur first. You're taking your baby steps, or you have taken your first steps towards becoming an entrepreneur. An entrepreneurial journey is all about, being profitable and all that stuff. If you are profitable, you can stay in business and do a lot of things. You can be a social entrepreneur. You can do whatever you want to do, expand, do anything. But if you're not profitable, if your customer acquisition cost is less than, or rather more than your profit, then everything goes down. You have to shut shop and go. Yes. Sorry. Somebody saying something? All right. So we try and cover the art and science of customer acquisition and how and why the math has to always work out. I mean, we all understand basic bits and pieces of customer acquisition, whether we are going offline, whether we are going online, or whether we give a hybrid model of online, offline, both. But what is it that we need to cover, and what are the specific things that if we can keep track? There are 4 or 5 things that of the stages, if we can,
properly cover those bases, I think we can easily have a very lower customer acquisition cost and, increase our profits. So let's move forward. Customer acquisition, as somebody has already said, what is customer acquisition? And I don't have to say this because you guys are already very well informed. It's the process of finding and pursuing prospective customers to buy from your business in a way that is both measurable and repeatable and not random. So you're not opening a shop, दुकान खोल के नहीं बैठ रहे हैं कि कस्टमर आ गया तो सेल हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं आएगा. कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस जब हम बना रहे हैं, जब हम मैच कर रहे हैं, या जब हम अपना मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं, या पूरा फनल क्रिएट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिस्टम थ्रू विच वी कैन मेजर, वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ ऐसे कस्टमर्स आएंगे, इस तरीके से आएंगे, ये परसेंटेज रहने वाला है विद अ स्लाइट वेरिएशन अप एंड डाउन, और मैं इतना सेल या इतना अचीवमेंट ले सकता हूँ. देयर इज नथिंग रैंडम, देयर इज नथिंग सरप्राइज. So that is the art and science behind it. How do we do it? So if I have to simply put, to chalk out a repeatable and methodical way of attracting customers, irrespective of the uncertainties prevailing in the market. Very simple. I know where I'm going with my business, how I'm going to achieve my business goals, how I'm going to achieve my sales goals, and these are the ways that I have to, take care of it. Phase 1, I'm going to do this. Phase 2, I'm going to do this. These are my customers, and these are the things that I have to do. I have to go online, I have to go offline, I have to go a digital, both of it. I have to woo my customers, I have to give them better product, better services, something which is lucrative to him to come back to me, or try me for the first time. But make no mistake, customer acquisition process or techniques or the system is not marketing. I've met a lot of people who have said that, okay, ये marketing ही बता रहे हो आप, marketing ही होती है. नहीं सर, marketing नहीं होती है. Marketing is something जब आप अपना brand awareness कर रहे हो, brand प्रॉब्ली रिकॉल की तरफ भी जा सकते हो, बट कस्टमर एक्विजिशन वो होता है जब आपकी मार्केटिंग चैनल्स के बाद कोई उस पर एक्शन क्रिएट करता है. आपने अखबार में ऐड दे दिया है, उसमें बहुत अच्छा सा आपने एक दिवाली के टाइम पे ऐड दे दिया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे आपका नंबर, ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट या एसएमएस कोड नहीं है, तो वो मार्केटिंग ही. आपने नीचे उसमें कोई प्रॉमिस कर दिया, आपको इंस्टीट्यूशन हो, आपको डिस्काउंट दे रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका डिस्काउंट दे रहे हो, उसके फायदे बता रहे हो, उसके नीचे आपने सेल्स चैनल का नंबर दे दिया, आपने उसका एसएमएस कोड दे दिया, इंक्वायरीज कलेक्ट हो रही हैं, somebody is clicking and taking a pen, and then आप एक पूरा प्रोसेस शुरू कर रहे हो कि कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी नीड समझ रहे हो, उससे कनेक्ट करके उसको सेल कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो. दिस इज कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस. दीवार पे या हाईवेज पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में. द लेडी जस्ट द लास्ट स्पोक अबाउट दिस न्यूट्रिशन वाले में, सलोनी. अगर वो आप सिर्फ अपना बोर्ड लगा के, ऐड लगा के छोड़ देते हो, या ऑनलाइन कैंपेन करके छोड़ देते हो, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कस्टमर को आपकी तरफ ला रही है, for which you have worked on the triggers or the pain points, या customer assessment या customer segmentation नहीं किया है, and there is no way the customers can reach back to you, there is no defined way how the customer is reaching you, then it's plain simple marketing, brand marketing है. लेकिन आपने उसके अंदर एक डेफिनेट प्लान दे दिया, आपने उसके अंदर अपनी यूएसपीज बता दी, उसके नीचे कनेक्ट करने का जरिया बता दिया, आपने ईमेल दे दिया, आपने शॉर्ट कोड दे दिया, आपने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, आपने ऐप दे दिया, क्यूआर कोड दे दिया, जहां कस्टमर ने क्लिक करके एक्शन जनरेट कर दिया, अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया, वो कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस. वहां से कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस होता है. इफ अ कस्टमर इज विलिंग टू टेक एक्शन by purchasing or subscribing to your product and services, that's acquisition. A lot of people mistake customer acquisition with marketing campaigns and stuff like that. No, marketing campaign is just one part of customer acquisition. It's not customer acquisition in itself. Having said that, let's move forward. Customer acquisition generally happens in this whole journey, whether your lead cycle is 1 month, 1 day, 15 days, 1 month, 3 months. It's a funnel. Basically, very start with, when you start offering your products and services, you wanted to do a carpet bombing or a specialized target teaser campaigns, or you reach out to your customer target segment, customers target segment आपका जो भी है, आपने उसको assign किया है. You start with awareness first. आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना शुरू करते हो, अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी यूएसपीज के बारे में बताना शुरू करते हो. ऑलरेडी आपने कस्टमर के ऊपर बैकग्राउंड रिसर्च किया होता है, उसकी पेन पॉइंट्स पे सर्च किया होता है, अपने टारगेट सेगमेंट पे सर्च किया होता है, तो उसका इंटरेस्ट जनरेट हो. दीज आर लीड स्टेज. उसके बाद वो आपको कंसिडरेशन में लेना शुरू करता है, वो ऑनलाइन आपको सर्च करना शुरू करता है, वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ आपको कंपेयर करना शुरू करता है. ये कंसिडरेशन स्टेज. फिर वो लेने का मन बनाता है, वो 1 पॉइंट जर्नी इनिशिएट करता है, वो आपसे बात करता है, आपसे बात करके अपना यूजर एक्सपीरियंस वैल्यूएट करना चाहता है, प्राइस में नेगोशिएट करना चाहता है, सर्विसेज में नेगोशिएट करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है. अब उसकी इंटेंट बन रही है, अब वो प्रोस्पेक्ट स्टेज पे आ जाता है, एंड देन फाइनली द सेल्स हैपन.
परचेज हो गई, वो आपका सेल्स कस्टमर। सो दिस इज अ कस्टमर फनल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अवेयरनेस से शुरू करते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज को उसके कंसिडरेशन पूल में डालते हो, और उसके बाद वो पे करता है और वो आपका कस्टमर बन जाता है। दिस होल साइकिल इज कस्टमर एक्विजिशन फनल और कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। Let's quickly understand the customer acquisition process. What is customer acquisition process, and how and why we decide on what to do and how to do, and how my customer is reaching out to me. The first and the foremost is the identifying target audience. Some people call it customer segmentation. Some people call it customer personas. So I really wanted to understand from somebody, from all of you, or some of you who have already done this thing. Okay, let's understand from you, how have you identified your customers? And I'll tell you, customer identification or identifying target audience is a very basic thing that you have to do before you start your whole acquisition journey. आप B2B करना चाहते हो, आप B2C करना चाहते हो, आपकी टारगेट मार्केट रूरल है, ये जैसे सलोनी ने कहा था कि उनके B2B कस्टमर्स हैं, या कुछ लोग हैं जो डेयरी फार्मर्स को ऑपरेट करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सर्विसेज या एक्सपर्ट एडवाइजरी दे रहे हैं, तो वो फार्मर से बात करना चाहते हैं, या आप अभी एक पर्टिकुलर स्टेट में हो, आप उस स्टेट में बात करना चाहते हो, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो, वहां बात करना चाहते हो। दीज आर द सम थिंग्स दैट यू हैव टू आंसर। कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर पर्सोना बनाना बहुत जरूरी है। आपका आपका पेइंग कस्टमर कौन है? क्या वो फार्मर है? क्या वो डेयरी फार्मर है? क्या वो एक मिडिल क्लास पर्सन है? क्या वो हाई पेइंग कस्टमर है? आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है? सपोजिटली दो लोग एग्री स्पेस में काम कर रहे हैं। आई विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक सलोनी का एग्जांपल है जो डेयरी फार्मर्स के लिए कुछ बना रही है, जो B2B कस्टमर को बेच रही हैं, या इन सम केसेस में B2C कस्टमर को भी शायद सैम्पलिंग में या किसी में दे सकती हैं। द प्रोडक्ट मे नॉट कॉस्ट एनीथिंग बिटवीन 500 to 1000, 1200, 15,000, 2000। देयर इज अनदर कंपनी, वो ट्रैक्टर बनाती है, उसका मिनिमम प्रोडक्ट 10 लाख से शुरू होते हैं। आप दोनों के पेइंग कस्टमर तो फार्मर्स हैं या डेयरी फार्मर्स हैं, लेकिन वो दोनों का सेगमेंटेशन अलग अलग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस लेके आ रहे हो, क्या आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और कैसे आप कस्टमर को देने वाले हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो यहाँ पे गलती करते हैं। हमारे बहुत सारे नॉट जस्ट स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टैब्लिश बिजनेस में भी आजकल बहुत बीच में बहुत ट्रेंड हो गया था कि मार्केट से डेटा उठा लेते हैं, एक SMS शूट लगाएंगे, फिर कॉलिंग करवा देंगे कस्टमर केयर से और सेल्स निकल आएंगी। हार्ड सेल्स ऐसे ही होती, सॉरी, हार्ड सेल्स ऐसे नहीं होती। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपको पता ही नहीं है कि आपका पेइंग कस्टमर कौन है, तो आप कैसे खरीदने वाले? ये पूरा आप लोग जितने भी बैठे हो, पार्टिसिपेंट 30 पार्टिसिपेंट्स आर डाइवर्स पूल है। कुछ लोग डेयरी में डील कर रहे होंगे, कुछ वेट में फार्मा में डील कर रहे होंगे, कुछ सीड साइड पे होंगे, कुछ पेस्टिसाइड्स बायो उस पेस्टिसाइड्स की साइड पे होंगे, कुछ इक्विपमेंट साइड पे होंगे, कुछ सर्विसेज साइड पे होंगे, या कुछ मार्केट लिंकेज में या किसी और चीज में। आप सब लोगों का भी मार्केट सेगमेंटेशन या टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है। आप अपनी सर्विसेज फ्री में ऑफर कर रहे हो, आप अभी फिलहाल स्टेज में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना चाह रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्टेज में किसी स्टेट को टारगेट करना चाह रहे हो, किस यूनियन ज्योग्राफी को टारगेट करना चाह रहे हो, आप कैसे उसको डिफाइन करते हो? दिस डिफाइंस योर टारगेट ऑडियंस। कस्टमर सेगमेंटेशन पर्सोना ऐसे डिसाइड होता है। फिर जरूरी नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल कभी नहीं होता। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया से और डिजिटल से बहुत सेल हो गया। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। Yes, social media is a very cheap model. It's a very, sustainable model. Digital is a very sustainable model. But there are areas जो सिर्फ और सिर्फ physical contact से चलते हैं, या there are areas जो सिर्फ ATL या BTL से चलते हैं। I'll give an example within the agri services. Somebody जो डेयरी फार्मर्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है जो 1000, 1200, 500 से लेकर 2000, 2500 की रेंज का है, आप कितना भी उसका ATL कर लो, न्यूज़पेपर ऐड दे दो, कितना भी उसका डिजिटल मार्केटिंग कर लो, वो नहीं बिकेगा जब तक उस कस्टमर को फील नहीं किया जाएगा। कस्टमर उस प्रोडक्ट को फील नहीं करेगा, उसका ट्रायल्स नहीं करेगा, उसका टेस्ट नहीं करेगा, या कहीं से टेस्ट रिपोर्ट्स उसके सामने नहीं आएंगी, या कहीं से टेस्टिमोनियल्स उसके आसपास के एरिया के लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तक वो नहीं चलेगा। फार्म मैकेनाइजेशन की कंपनीज हैं जो सॉल्यूशंस लेके आ रही हैं, जो इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, जो हैवी इक्विपमेंट्स, जब तक उसके ट्रायल्स नहीं होंगे, टेस्ट नहीं होंगे, वो नहीं बिकेंगे। देयर इज अ रीजन कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर 15-20 ब्लॉक लेवल पे आपको एक ट्रैक्टर कंपनी का और एक इक्विपमेंट कंपनी का डीलर मिल जाता है। वेट फार्मा में नहीं मिलता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीलर होता है। देयर इज अ रीजन। वेट फार्मा की कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटी छोटी दुकानों के थ्रू। फार्म मैकेनाइजेशन की कंपनीज अपना सामान नहीं बेच सकती हैं, बिकॉज कस्टमर हैज टू कम, टेस्ट, फील, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट,
and then probably take a test ride and then go home, sleep on it, फिर मन बनाएगा फिर आएगा. So identifying a target audience, target segmentation, customer persona बहुत जरूरी है. इवन इफ एक बड़ा जनरल स्वीपिंग टर्म होता है कि हम फार्मर्स के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं. किन फार्मर्स के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं? 3 days back I was in a conference and I asked somebody and there was this lady जो सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग करती हैं और वो सॉल्यूशंस बना रही थी. आई सेड आप फार्मर्स के लिए सॉल्यूशन बना रहे हो, बट कैन अ फार्मर एक्चुअली अफोर्ड योर सर्विस? यू हैव टू टेक अ कॉल कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो. बहुत स्वीपिंग टर्म हो गई है कि हम फार्मर्स के लिए, लो लेवल फार्मर्स के लिए, लो इनकम फार्मर्स के लिए कोई चीज बना रहे हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आप उसको उस लेवल पे सर्विस अवेलेबल करवा सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ ड्रोन कंपनीज इन द कंट्री राइट नाउ. आर दे सेलिंग ड्रोन्स? कैन अ फार्मर एक्चुअली अफोर्ड ड्रोन्स? नहीं. इसीलिए गवर्नमेंट ने आज एफपीयूज के थ्रू या कॉर्पोरेट्स के थ्रू एक कलेक्टिव 50-100 फार्मर्स के लेवल पे ड्रोन्स देने या ड्रोन्स रेंट पे देने शुरू किए. सो कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, टारगेट ऑडियंस को समझना, वो कहाँ है, क्या है, बहुत जरूरी है. बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द हाफ स्टेप. इसके साथ इंटरलिंक्ड एक और स्टेप है विच इज आइडेंटिफाइंग द पेन पॉइंट्स. हम उसको सिंपल भाषा में परचेज ट्रिगर्स कहते हैं. मान लो आपको पता है कि आपका कस्टमर क्या है, पर उसकी परचेज हैबिट्स क्या है, उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है, उसकी सर्विसेज अवेलिंग की हैबिट्स क्या है, हिस्टोरिक डेटा क्या कहते हैं, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स क्या कहते हैं. एंड दे प्ले अ मेजर रोल बाय द वे कि वो क्यों खरीदेगा या क्यों आएगा. क्या वो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल चैनल्स को स्विच करेगा हमारे कहने पे? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या आज की जेब में जो फ्लाई बाय नाइट नई नई रोज कंपनीज आ रही हैं, क्या वो इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर रही हैं रूरल मार्केट में, एग्री मार्केट में, कि हर नया प्रोडक्ट टेस्ट हो जाए? नहीं हो रहा है. सो व्हाट आर द परचेज ट्रिगर्स, व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग पेन पॉइंट्स? कुछ तो होगा ना. आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी सोचा होगा जब आप लोग आए हो या कर रहे हो, बट a lot of people I have seen who are neglecting this. Sweeping journalist terms में चलते हैं और इन बातों पे बात करते हैं, बट आई टेल यू व्हाट, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस में उसकी कॉस्ट को कम करने में, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में, बाकी सारे पॉइंट्स पे, मतलब क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान, उसकी एग्जीक्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ के लिए आपको डिजिटल एजेंसीज, आपको एक्सपर्ट्स, आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं. बट ये जो पहले दो स्टेप्स है ना, आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस एंड आइडेंटिफाइंग द पेन पॉइंट्स ऑफ परचेज ट्रिगर्स, ये आपके लिए कोई करके नहीं देगा. ये मार्केट रिसर्च आप एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ स्टार्टअप फाउंडर खुद करेंगे. आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की पेन खुद जानेंगे, खुद मिलेंगे, तो बात आगे बनेगी. नहीं तो आपको ये काम कोई नहीं करके देगा. आप कितने भी कोहॉर्ट्स ज्वाइन कर लो, आप कितने भी एक्सपर्ट्स हायर कर लो, बहुत सारे लोग कर लो, लेकिन ये बेसिक 2 पॉइंट्स कोई नहीं करता. आप पिछले 5 साल का अगर स्टार्टअप्स का डेटा उठा के देखो तो फर्स्ट फंडिंग मिलते ही सारे स्टार्टअप्स कस्टमर एक्विजिशन के लिए सबसे पहले गूगल, फेसबुक पे या ऐसे पैसे लगा देते हैं, विदाउट डूइंग अ बेसिक होमवर्क कि क्या मैं अपने डायरेक्ट एक्चुअल टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहा हूं या मैं कारपेट बॉम्बिंग कर रहा हूं. क्या मैंने पेन पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स, परचेज ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं? बिकॉज आपने 10 लाख रुपए आगे एक ऐड लगा दी, उसमें से 2 4 5 10 इंक्वायरीज निकाल ली, तो वो मार्केटिंग एक्विजिशन प्लान नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी. सो एज ए स्टार्टअप फाउंडर हम लोग भी जब ये काम करने लगे थे, जब हम लोग एफटीडी एस्टैब्लिश कर रहे थे, मी एंड माई को फाउंडर, वी स्टार्टेड मीटिंग पीपल इंडिविजुअली. मैंने और मेरे फार्मर्स ने 1 लाख से ज्यादा फार्मर्स से बात करी है. 6 मेजर आइटरेशंस की हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने ऑफर्स में, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में, अपने फिजिकल प्लेटफॉर्म में, तब जाकर आज हम अपने एक्चुअल प्रोडक्ट के कहीं आसपास पहुंचे. 6 major iterations in a business plan, in the offerings that we were offering. And I've seen a lot of people making those mistakes कि इन दोनों पॉइंट्स को रश करके आगे निकल जाते. So I wanted to pause here because these two for me are the biggest and the most important points in the whole journey of customer acquisition. I want to throw open this platform for few of you to join in and chip in and share about कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और what is your understanding and take on this. And believe on me कि आप हिंदी में बात करना पसंद करें या और whether you're comfortable in English, I want you to open up and discuss here because this is one step that you don't want to neglect actually. Please. Anyone? No one? Please understand. Hello? Yeah, please. Yeah, hi.
So Divyanshu this side from AgroHub. Yeah, Divanshu. Yeah, we are from Jharkhand, sir, and our business we are targeting about ki we are creating supply chain for biomass supply chain for those industries which need biomass, and on the back hand side from the farmers. So what we saw that कि sir what farmers who are our base, जो हमारे base है जिनसे हमें चीजें चाहिए वही हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. Carry on. Why is that? हाँ, तो जब हम ये चीजें पता कि सर क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे, तो देर की वहां पे ना कोई सिस्टम है, एंड हम भी ना सिस्टम बना पा रहे हैं कि कैसे हम उनसे कनेक्ट करें, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर है एंड एफपीओज आई थिंक मेरा पर्सनल व्यू है कि ओनली 5 to 10% एफपीओज आर ऑपरेशनल, बाकी सारे वेग है. ये सर उससे इस भी कम है, उससे भी हाँ, कम है. उससे भी कम हो सकता है, बट बाकी 95% एफपीओज आर वेग. तो हम कैसे उन्हें कनेक्ट करें कि वो, हाँ, आप हमें बेचो. तो वी हैव ट्राई टू एस्टेब्लिश फार्मर पॉइंट्स. तो व्हाट आर दोस फार्मर पॉइंट्स? की फार्मर पॉइंट्स लोकल सीड शॉप हो गए या फिर लोकल कोई भी उस विलेज के हो गए जो उस एरिया में उस चीज को कलेक्ट कर पाए, रेसिड्यू. बट ये एक थोड़ा सर्कुलर होते जा रहा है और धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है. तो वी आर नॉट एबल टू गो फॉर दैट, which was our main vision. Understood. Very, very common and very, very common problem with a lot of people in the industry. But thank you. Anyone else? Sir, hello sir, this is Nikhil from Jharkhand as well. Yeah. Sir, हमारा जो we are a baby food manufacturing and we are also manufacturing food for all, जैसे चीला मिक्सेस वगैरह ये सब हम लोग बनाते हैं. So इनिशियली जो है हमने पहले एजेंसीज के साथ में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को चलाने की कोशिश करी, और एजेंसीज तो बहुत बुरी तरीके से मतलब हमारे खाली पैसे ही बर्न हुए. तो फिर हमने अपने इन हाउस में ही टीम को रखा. अभी तो हमारा सही चल रहा है, 1.5 का रुआस मिलता है, बट हम इसको बढ़ा करके करीब 3 से 4 रुआस करना चाहते हैं, मिनिमम से मिनिमम. सो उसके लिए हमें टीम को बड़ा बनाने की जरूरत है, और ऐसे कहीं हमको टीम नहीं मिल पा रही है जो जिसको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी हो. सो हाउ कैन यू हेल्प इन दिस सेगमेंट कि कोई हमसे जुड़े जिसको नॉलेज हो, और वो हमें जुड़ने के बाद में वो हमको करीब 3 से 4 रुआस तक हेल्प कर पाए पहुंचने में. So there are two things, if I understand correctly. आप कह रहे हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, and you wanted to hire somebody as a manpower, or you want to hire a creative agency? No, I want to hire a manpower. We already have it in house, and we are This is the biggest hurdle को इसमें hire करें. in the industry, boss. क्या हुआ है कि IT ITS में और इन सारे टेक्निकल डोमेन्स में बड़ी टेक कंपनीज ने मैन पावर का जो हायरिंग है ना वो इतना ज्यादा स्क्रूड कर दिया है ना कि आज एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटियर को या आईटी कंपनी को एट अ वेरी 4-5 years एक्सपीरियंस ना, वो जॉइनिंग बोनस 5 लाख रुपए दे देती है जो आप और मेरे जैसे स्टार्टअप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते. टेक्निकल मैन पावर हायरिंग इज अ बिग कंसर्न, नॉट फॉर यू बट फॉर मी एज वेल. यार आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग. मैं अपने टोटल एनुअल बजट का 1/4 अपनी टेक्निकल टीम की सैलरीज पे खर्च करता हूँ, और उसके बावजूद भी दे थ्रेटन मी एवरी डे. यार, so this is a critical challenge that we all are facing. But connect with me offline. We'll see what can be done here. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Yeah. Hi, sir. Sir, I'm Harshit from Kanpur. So actually, we are Climate Analytics. The other company, we are working on the weather-induced losses, particularly from planning stage. So sir, like right now we are at the first and second stage जो आप बात कर रहे हैं, एक target audience को identify करना और उनके pain point को समझना, and that's something we are in-house doing that. The whole team is right now engaging on that particular aspect. Now the problem right now we are facing is like when we see this kind of a product, it's like it is useful for different kind of businesses, like insurance industry can be useful for different agri-tech businesses, agri businesses at the same time. So there are like 3-4 major basically B2B things. Right now what we are doing, we are initially basically हम उसको broaderly पहले competitor analysis and all those things target audience कर रहे हैं, but it is taking a lot of time. So I mean, can you suggest us like what the right, because when you don't know the right kind of a target audience, gut feeling से what हमें लग रहा है कि अभी हमारे जो experience से निकल के आ रहा है, it seems like insurance industry or maybe the similar one are the great potential to start with. But do you have any process? What exactly or are you doing? help us to Come again. What exactly are you doing?
तो एक्चुअली हम लोग सर हम लोग क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टअप है, एंड प्लानिंग स्टेज में जो वेदर से रिलेटेड लॉसेस होते हैं, लाइक इफ यू चूज द रॉन्ग क्रॉप, यू हैव टू बेसिकली पुट मोर मनी टू सेव इट, एट द सेम टाइम तो जो लोकल वेदर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो उसको डैमेज करता है. तो वी आर सजेस्टिंग basically best crop out of the farmers basically, or the businesses are right now selecting. तो वहां पे हमारा प्लानिंग स्टेज में हमारा इंटरवेंशन आता है कि चूज द राइट क्रॉप. सीजनल यील्ड फोरकास्ट में हमारा काम है. Sir, it's your business, but मेरी limited understanding में, if you go a B2C model, which is to farmers, they're traditionally doing whatever they want to do and they don't want to change. There's a lot of resistance in the market, in the farmers, जो अपने ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते. So, अगर आप Agree, sir. सिंपली B2C ट्राई करना चाहते हो तो वो बहुत बड़ा अपहिल टास्क होने वाला है मेरी लिमिटेड B2C हम अंडरस्टैंडिंग के लोग जा हिसाब नहीं से. रहे सर. सर B2C हम लोग इसीलिए सोच नहीं रहे हैं. हम लोग B2C बिल्कुल. प्लान नहीं कर रहे हैं. वी आर प्लानिंग फॉर B2B, B2B but on the B2B में other hand, मल्टीपल बिजनेस. multiple business है. So you are basically creating a weather platform or a weather advisory service which can be beneficial for crop insurance and other agri science companies जो अपना अपना solution दे रही हैं, जो एरिया में solution दे रही हैं. Even the pesticide in the bio fertilizer side market में भी कि यार ये वाला solution या ये वाले solution के हिसाब से आपका ये वाला product अच्छा चल सकता है, और where there we have a market या historically ये problem थी, why didn't you try something this here. क्रॉप साइंस कंपनीज इस मामले में आजकल बहुत एक्टिव हैं और बहुत काम करती हैं. आई थिंक एक बेसिक प्रॉब्लम आप और मेरे जैसे स्टार्टअप्स की ये है कि कोई भी आउटराइट हमारे सॉल्यूशन पे हेल्प बिलीव नहीं करना चाहता है, एंड एवरीबडी वांट्स अब थोड़ा सा फ्री ट्रायल करवा दो, थोड़ा सा फ्री सर्विस दे दो, एंड देन दे डोंट कम बैक एंड लिसन टू यू because there are a lot of people like you and me offering the same service, and if you are offering at 100 rupees, I'll go back and say sir मैं 80 में कर दूँ. ये पुलिंग बहुत ज्यादा है, बट we have to increase our footprints in the B2B segment कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, testimonial section से and all that stuff, and ultimately we have to do it. Similar case मेरे पास आया था एक कभी जून में, सिजेंटा फाउंडेशन की तरफ से फॉरवर्ड होके आया था. there's a US based company जो कि इंडिया में काम करना चाह रही थी एंड अगेंस्ट द टाइड करना चाह रही थी. पोटैटो हार्वेस्टिंग में है, तो पोटैटो वैसे ही नीश मार्केट है. फिर वो लोग इस देश में 90% जो पोटैटो हार्वेस्टिंग होती है वो एरोफेनिक होती है. वो ARC टेक्निक लाए थे, विच इज जो पूसा नहीं डेवलप की है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मार्केट में चलती नहीं. सो US बेस्ड कंपनी थी, बेंगलोर में सिर्फ एक फार्मर था, पोटैटो में बहुत नीश में काम कर रहे थे. ARC टेक्निक को लाना चाह रहे थे जो देश में नहीं चलती है, बहुत नीश सेगमेंट में एंट्री करना चाह रहे थे, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज्ड है, क्योंकि पोटैटो रिसर्च सेंटर है और पोटैटो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो बाहर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ज्यादा जगह नहीं है. बट there are a lot of things that you have to do actually. उसमें कार्पेट बॉम्बिंग भी करनी है, आपको मूड्स भी बनाने हैं, आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी खड़ा करना है अपने लिए, आपको अपने लिए टेस्टिमोनियल्स भी खड़ा करने हैं, आपको क्लाइंट विजिट्स भी करवानी है. इट्स अ लॉन्ग एंड अ पेनफुल जर्नी, एंड देयर इज एन ऑर्गेनिक जर्नी, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. Hello. Thank you, sir. Thank you. Yes, Rajaji. My name is Nagraj. I'm from Bangalore. Okay, Yes, sir. I'm into agro machinery for spraying. Okay, pesticide spray. So I know market is required because labor shortage, everything is current market scenario. But customer acquisition is a big challenge until you show the product or make a trial. Okay, how should I fix this problem? Because if I have to go to B2B, there's a different segment, then I have to work, and B2C is again different. So what is the way we have to go further? Sir, in my limited understanding and advice, I have to put the ball on your court to decide whether you wanted to go for a B2B and B2C, because initially going both B2B and B2C will not work out and does not advisable, because it takes a lot of manpower and a lot of resources. So decide on B2B or B2C based on the merits and the geographical location that you are there, or the historical data that you have, and then probably we can decide on what are the strategies for the B2B and what are the strategies for the B2C. If that's what you were asking me, or you wanted to tell you more about a specific thing, that how to do it and why to do it. No, Yeah, tell me. Sorry, come again. No, see, the reason is, okay, if I, unless I have to go to the customer, I'll not understand, the
his basic requirement. If I go to the B2B, then total sigma of the product itself changes. Means they want the product itself directly, okay, you run it. But when I go to the customer level or a farmer, basically customer is a farmer. Okay, so his requirement is totally different. So there is I'm still looking which way to go, which way is to not to go, because this is a agriculture machinery. But how I should get in? Actually, customer acquisition stage itself, I have to think in a very different sense. That's the reason I'm asking this question. Can you elaborate more on what is customer agriculture machinery thing? What is exactly that you? Oh, okay. Basically, this is a product, okay, for pesticide spray, robotic pesticide spray. Okay. Now the labor, you don't get a labor in the village side because of the spraying is a tough job and a health hazard. And if the another problem issue is, if in a village there is a pesticide attack happens, so the labor is very shortage and we don't get the labor. Okay, so I have faced, I'm also a farmer. I'm facing this problem in my own area. So I came out with this solution right now. Okay, that's the reason I'm looking at not just as a single customer, because acquiring an individual customer, it will take a longer period. That's the reason I'm thinking of this. Sir, I think the best solution, according to me, would be a B2B paving way for B2C. If you can Okay. be contacted with a lot of crop science and crop protection companies, Okay. because they do a lot of surveys, and there are Syngenta foundations and the companies who do a lot of free surveys and free samplings and free spraying of these pesticides and all these stuff. So they are targeted companies. If you take your solution to them, somehow include this in their CSR programs, then a B2C customer will first-hand experience that how a big company is using this product and how this is beneficial to me. So I think the initial way has to be a B2B, paving way for a small B2C segment, start from one state or one unit, and then probably taking it forward. B2C has to be organic and will take time, energy, and money. But Correct. B2B can give you very quick and very early results. Thank you, And sir. there are companies looking for this kind of solutions. Okay, thank you, sir. Thank you. Anyone else? I can see a raised hand from Utsav ji. Hi, sir. I am Utsav Mishra from Climb Agro Analytics. So, I have a very generic question. So, mostly the tech-driven startups, so they are developing some idea. So, mostly the partners and founders are technology-oriented. So, my question is, what is the timing of this exercise, like customer? Exactly the same time when you're deciding for a solution or whether starting to raise your organization, or when you started to do something. Before this, your solution, you can't decide basically on the solution. It's the problem statement basically. Who is your target audience? What is his pain points and what are his purchase triggers? Based on that, you form a problem statement and your solution. So this is basically when you are setting up your company. Are you with us, or is there a technical issue that we have lost him? Utsav ji? Okay, we can talk to him again. Himanshu ji? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Actually, sir, this is Himanshu from Farming Robo. Exactly same, Mr. Raman. Okay, I am from Aligarh, Uttar Pradesh, and I am from a town, Eglas, that is. Okay, sir, actually we innovate same robot like अभी आपने राजा रमन जी ने जो बोला, ठीक है, तो उसमें कैसा था, उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उसके बाद इंटर कल्टीवेटिंग करते हैं, उससे जो लाइन टू लाइन 2 to 2 वाली फसल होती है, ठीक है, क्रॉप होती है, उसके बाद हम उससे फर्टिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और सीड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. So this is a multiple robo. So I want to know कि अभी ना हमारे पास 2 ऑप्शन है सर, एक तो B2B जाने में भी है, एक B2C जाने में भी है. सर बेसिक फंडा समझ लो, बिल्कुल जी बेसिक सर. फंडा समझ लो. आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट. आपका No, sir. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट है, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव सर. प्रोडक्ट, जिसको डेमोन्स्ट्रेट करनी है अपनी कैपेबिलिटीज. बिल्कुल बिल्कुल. आपके नेटवर्क में आपकी अंडरस्टैंडिंग या टीम की कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप उसे B2B में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो या B2C.
ठीक है B2C सर। में गांव-गांव जाके आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, किसान मेलों में जाना पड़ेगा। सर बिल्कुल। B2B रादर आसान है, क्योंकि अगर एक कंपनी भी मान गई, 10 में से एक भी मान गई, तो वो कम से कम नहीं तो आपके 1000-5000 B2C कस्टमर्स को करवा देगी। बिल्कुल 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 अंडरस्टैंड योर्स इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट व्हिच कैन डेमोन्स्ट्रेट इट्स यूजफुलनेस। आपके पास बिल्कुल। टीम है, मैन पावर है, समय है, आप इसे B2C कर सकते हैं, बट ठीक है। B2B लेवल पे आप जल्दी फुटहोल्ड गेन करेंगे एंड देन इवेंचुअली गेट इनटू B2C मोड। Okay, sir. Actually, sir, I am from a background. My father is in business, seeds and pesticide. So I have a lot of customer base. भैया तो So I जितने think कस्टमर पे दुकान पे लोग आ रहे हैं दुकान पे, right. कुछ उधार भी लेते होंगे, कुछ बिल्कुल पुराने सर। ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल होते हैं, तो बहुत। उनके साथ तो सैम्पलिंग करना बहुत आसान है। बिल्कुल 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 सर। बेस्ड ऑन दोज सैंपल्स, उनके अच्छे वीडियो बना के, उनके यूजर केसेस बना के B2B में इसकी सेल्स या CSR ठीक है। उठाना बहुत आसान है। ठीक है सर। एक्चुअली अभी हमने पैडी से स्टार्ट किया था सैम्पलिंग करना, तो उसमें हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिले अकॉर्डिंग टू Thank you and फार्मर्स। congratulations, but I have to move on to next थैंक person यू। because we are running short of time. ओके Yes, ओके Kumar. श्योर। Yes, Kumar ji. हेलो हेलो राहुल जी, मैं कुंवर विशाल सिंह लखनऊ से। एक्चुअली वी आर गोइंग टू मेक माय वाइन आउट ऑफ मैंगो। मैं सर एक चीज बहुत थोड़ा सा जैसे कि आप लोग हर जगह जैसे चर्चाएं हो रही हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एग्जैक्टली जो सेल्स आती है वो तो ट्रेडिशनल से ही आती है जब आप जाते हैं, और एग्जैक्टली जो सेल है, तो कितना परसेंट आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि शुड गो इनटू डिजिटल एंड कितना परसेंट शुड गो इनटू ट्रेडिशनल, अगर बजट वाइज देखा जाए? कस्टमर एक्विजिशन जो अपने टारगेट बनाएंगे इस तरीके से, इसमें कैसे होना चाहिए? सर बेसिकली तो ये इंडस्ट्री वाइज, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज होता है। लाइक यू गो फॉर अ कॉस्मेटिक्स, उसमें फेस टू फेस कुछ नहीं होता। आपका इंस्टाग्राम चैनल्स, डिजिटल चैनल्स चलते हैं, यू हायर अ सेलिब्रिटी, पार्टी सीन क्रिएट करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। लाइफस्टाइल फैशन में आप स्पोर्ट्स भी दिखाते हैं, आप लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, आप डिजिटल वेलबींग और हैप्पी पर्सन भी दिखाते हैं। इन अ वाइन सेटअप, मतलब आपका जो ऑनलाइन है उसमें आप ज्यादा ज्यादा क्या कर पाएंगे, बिकॉज योर प्रोडक्ट हैज अ लिमिटेशन कि आप उसकी हर जगह टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग तो नहीं करवा पाएंगे, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्ट। या तो बिल्कुल सही। यू कैन टाई अप विद अ लॉट ऑफ पब्स एंड रेस्टोरेंट्स, और वहां पर एक फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इफ दे इंट्रोड्यूस। और एडिशनली मान लीजिए आप कौन सी सिटी में है सर? मैं लखनऊ में हूँ, और राहुल साहब मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था, क्योंकि लोग अब डिजिटल की मैं बातें वहीं पे आ रहा हूँ, करने लगे मैं हैं। वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा तो हूँ सर। मैं जी, लखनऊ सिटी पूछ रहा था, तो सपोजिटली वी टारगेट लखनऊ फर्स्ट। ओके। लखनऊ को हमें डिजिटली पहले कैप्चर करना पड़ेगा, एंड विद अ 60-70% ऑफ द मार्जिन, जो कि बिकॉज ये जो पब गोइंग और जो ये जो रेस्टोरेंट गोइंग जो सोसाइटी है ना, जो आपका टीजी है, वो फोन पे और इंटरनेट पे बहुत एक्टिव है, जी, पार्टी में, लाइफस्टाइल सेक्टर में बहुत एक्टिव है। सो वहां से ही यू रीच टू हिज हाउस इन हिज ईयर्स की देयर इज अ ब्रांड। बिलबोर्ड से फिर आप बाकी 30% में आप बिलबोर्ड पे शुरू करें, और जी, फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे सैम्पलिंग शुरू करें। Make it out a famous pub or famous lifestyle, and there are a lot of new pubs and new life, night बिल्कुल। joints are coming up जहां पे आप कर सकते हैं। So initially start with a city and put maximum on a digital and less on a physical ओके। initially, but इसमें eventually you will have to move on to ट्रेडिशनल 50-50 or जाना पड़ेगा। 60-40। ओके, 50-50 और टू 60-40। 40-60, ठीक है। Yeah. ये अच्छा Thank you. बताया। थैंक यू। Thank you. Okay, I will take one last one. Nishan ji. Nishan ji. Hello, sir. Yeah. Am I audible? Yes, yes. Yeah, sir. Sir, we are a startup. We provide farm finance management tool to the farmers. Since दोबारा we बताइए सर। don't. Sorry. सर दोबारा बताइए, समझ नहीं आया। हाँ सर, हम फार्मर्स को फार्म फाइनेंस मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड करते हैं, यानी विच इज एनालॉगस टू टैली जैसा टूल प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो खेती पे होने वाला जो हिसाब किताब है वो रख सके। सर, सिंस वी डोंट हैव एनी फिजिकल प्रोडक्ट टू मार्केट और सेल, वी हैव चैलेंज इन कस्टमर एक्विजिशन। तो हमारा जैसे सर बेसिक कस्टमर जो फार्मर्स है, तो उस तक हम आप कुछ अप्रोच हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स किसी को भी, हम। आप जिस मार्केट एरिया को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे जो भी फिजिकल डिजिटल ऐप बहुत ज्यादा चलती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा चलते हैं, उनके साथ टाई अप कर लीजिए कि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपकी सर्विस फ्री ऑफर और ट्रायल पे मिल रही है, तो आप इमीडिएटली 10-20-50 हजार 1 लाख का कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर पाएंगे।
अगर आप उसमें से 5-10 हजार लोगों को भी अपने यूजर सेगमेंट में ला पाए तो बहुत बड़ा सेगमेंट है सर स्टार्ट करने के लिए। यस यस। और सर मेरा और एक क्वेरी है सर। वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद केवीकेस, क्योंकि केवीके के पास भी बहुत अच्छा फार्मर बेस है। बट कुछ ऐसे आप अप्रोच या स्ट्रेटजीज हमें सजेस्ट करें ताकि केवीके हमारे साथ विलिंगली कोलैबोरेट करने के लिए रेडीनेस दिखाए। तो वो केवीके भी इज एक ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, केवीके इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है जी। यस सर। आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील कैसे होता है, वैसे हम पूसा से भी कर रहे हैं, वी आर ऑन अ पूसा प्लेटफॉर्म, बट केवीके के अपने सेट टारगेट्स होते हैं कि उनको इतने फार्मर्स की ट्रेनिंग या इतने फार्मर्स की एंगेजमेंट करनी है। अगर आप उसकी उस कहानी में कहीं फिट बैठ सकते हो तो दे विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। ओके ओके। थैंक यू। या थैंक यू सर। वन थैंक यू। Sir, I डॉक्टर have a मयूर, यू हैव question. समथिंग? Yes, sir. Just one last question. या सर मेरा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बेसिकली फोकस करती है वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, और अभी मेरी पहली प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, मतलब जस्ट इसके दौरान इंक्यूबेशन के दौरान ही एक मिनरल मिक्सचर पाउडर जो मैंने काफ़ी सारे जो पशुओं एक केटल्स होते हैं उनको खिलाने के लिए बनाया है, जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन में है। लेकिन मैं B2C में जाऊँ या B2B में, ये अभी एक चैलेंजिंग विषय है मेरे लिए। B2B में क्या मार्केट है सर आपकी? B2B में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है हर एक तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, और तो B2C में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई मैं तब लेगा, B2B में आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई तब लेगा जब ऑन डिमांड कस्टमर होंगे, कस्टमर आके मांग रहे होंगे या कस्टमर्स को आपका ब्रांड पता हो। हाँ वही और आप ये बात है कह रहे सर। हो कि आप बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट पे डीलरशिप खोलना चाहते हो, और ताकि डीलरशिप के पास एक काम है कि वो आपका सामान बेचे। यस सर। सर B2C ट्राई करो, थोड़ा सा ब्रांड बनने दो। ओके सर, पहले B2C ट्राई करता हूँ, फिर बाद में B2B पे आऊँगा आपके। क्या है ना कि एक छोटी सी सिटी को B2C के लिए टारगेट करना बहुत आसान है, किसी भी एक जगह को लेके, फिर उसको स्केल करना, रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, क्योंकि उस सिटी में बहुत सारे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, बाहर के प्लेयर भी आ जा रहे होते हैं। इन द मीन टाइम आप किसी यस सर। गवर्नमेंट एंटिटी के साथ मिलकर कुछ सैम्पलिंग करवा पाए, कुछ और करवा पाए कि आपके नाम पे थोड़ी क्रेडिबिलिटी और जुड़ जाए, तो चीजें को यस सर। आगे स्केल करना बहुत आसान हो जाएगा वहां से। श्योर सर। क्योंकि थैंक आपका यू। एक क्रेडिबल बना हुआ ब्रांड होगा ना, तो B2B में व्हाइट लेबलिंग की तरफ भी बहुत डिमांड चली जाती है कि कुछ कस्टमर्स आपकी कुछ कंपनीज यस सर। अपने व्हाइट लेबलिंग करके खुद उठाने को भी तैयार हो जाती है, यस सर। अनलेस मतलब ऑफ कोर्स इफ यू वांटेड टू डू दिस, but thank you. यस सर। So we have taken a lot of time on this, which is understandable Sir, I because have a these are the question. two. Okay, जी चंद्रशेखर जी। सर, हम लोग एक मशीन को डेवलप किए हैं जो कि स्टबल बर्निंग जो हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और हमने एक मशीन डेवलप किया है जो कि स्टबल को काटती है, जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उस सबको स्टोर कर लेके करके जितनी सारी चीजें स्टोर करती है सर, और हम लोग इसको डाइवर्ट कर रहे हैं एथेनॉल प्रोडक्शन में। सर हम जानना चाहते हैं क्या ये इकोनॉमिकली वाइबल हम लोग के लिए हो पाएगा, अगर, और हमें ये भी जानना है सर क्या इस मशीन का जो सैम्पलिंग है, जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है, उसमें हमें किससे मदद लेनी चाहिए हमें डेवलप करने के लिए, क्योंकि इनिशियल फंडिंग में हम लोग को काफी दिक्कत हो रही है। सर ये तीनों सवाल मेरे टॉपिक से, इस इनिशियल 1 मिनट से बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा बाहर के हैं। एक तो मैं आपको इस किसी भी टाइप पे कनेक्ट नहीं कर सकता सिर्फ एक लाइन के बेस पे कि आप ये बना रहे हो। दूसरा, लेट्स स्टिक टुवर्ड्स कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। आई थिंक विद इन दी पूसा नेटवर्क यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल। आप डॉक्टर अमरजीत से या किरण से या बात करके और भी एक्सपर्ट से मिल सकते हो, आ सकते हो। एंड इफ यू रियली वांटेड टू हेल्प मी, आई विल गिव यू माय नंबर, वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन, बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। आई एम सॉरी, बट आई हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। आई होप I you would don't please, I mind. would request to give your number, sir, so that I can I'll give it. contact you. I'll give it to you after the presentation. Yeah, thank you, So sir. now that, thank you. So now that we have understood that these are the two major pain points to understand and devise a customer acquisition process, and the outcome is largely dependent on that, there's another plan which is creating a marketing plan. Identify कर लिया customer कौन है, उसका persona define हो गया, pain points decide हो गए, कर लिया। अब हमें ये देखना है कि marketing plan बनाना क्या होगा। मार्केटिंग प्लान में कस्टमर एक्विजिशन के चैनल क्या होंगे, ऑफलाइन बेचना है, ऑफलाइन बेचना है, मैं कॉस्मेटिक्स बेच रहा हूँ या मैं एग्रीटेक में बेच रहा हूँ, मैं मशीनरी बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ऑफलाइन नहीं बेचना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं बेच सकता। या मैं कोई ऐसा वेट फार्मा का कुछ सर्विस बना रहा हूँ या मैं कोई सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, तो शायद मैं ऑनलाइन उसको बेच सकता हूँ, टैग अलाउन कर सकता हूँ किसी और सर्विस प्रोवाइडर के साथ। कैंपेन गोल्स क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। विदाउट मेजरेबल आउटकम्स
किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्लान डिवाइस कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो अगले 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म, ऑनलाइन, 1 लाइन, 1 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, तो आपको पता होता है कि आप कितनी सेल्स उठाना चाहते हो, कितना यूजर बेस अटैच करना चाहते हो। ऐप बेस्ड काम कर रहे हो तो यार मैं अभी 5,000 फार्मर्स पे हूँ, मैं 20,000 पे पहुंचना चाहता हूँ। या एवरेज स्टे कस्टमर का मेरी वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म पे 3 सेकंड का या 1 मिनट का है, मैं उसको 3 मिनट बनाना चाहता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस में अभी मेरे पास 3 स्टार 2 स्टार्स की रेटिंग आ रही है, मैं उसको वाओ पे ले जाना चाहता हूँ। ये सारी चीजें हमारे मार्केटिंग प्लान में होती हैं कि हम कौन सा चैनल लेने वाले हैं, बेस्ड ऑन कि मेरा आगे आइडेंटिफाइंग, मतलब मेरा कस्टमर क्या है, उसका पर्सोना क्या है, उसकी ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। आप ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर की कंपनी के लिए, इक्विपमेंट की कंपनी के लिए मार्केट कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। मे बी वो ब्रांड रिकॉल कर देगी, बट अल्टीमेटली किसी कस्टमर को फिजिकल शॉप पे आना ही पड़ेगा। लेकिन आप किसी और चीज में काम कर रहे हो, आप सर्विसेज में ऑफर कर रहे हो, आप SaaS बेस्ड कोई सोल्यूशन दे रहे हो, तो प्रॉब्ली आप ऑनलाइन उसके साथ काम कर सकते हो। कैंपेन गोल्स बहुत जरूरी हैं कि मैं अगले 3 महीने में ये करना चाहता हूँ, इस मार्केटिंग प्लान से इतने लोगों तक मैं पहुंचूंगा, उनके थ्रू मैं ये कस्टमर एक्विजिशन की ये लीड्स इकट्ठी करूंगा, उसमें से मैं इतने लोगों को, कस्टमर को क्रिएट करूंगा, कन्वर्ट करूंगा बेस्ड ऑन माई सर्विस। तो ये मेरा आउटकम है कि मैं अगले 3 महीने में 500 नए कस्टमर जोड़ना चाहता हूँ या 1 लाख नए कस्टमर जोड़ना चाहता हूँ। देर आर टैंजेबल गोल्स, देर आर टैंजेबल थिंग्स टू कैलकुलेट, जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस का हिस्सा होती है। उसके बाद आपने कैंपेन डाल दिया मार्केट में, आपने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, B2C में गांव से गांव में जा रहे हो, फील्ड ट्रायल्स करने जा रहे हो, आपने ऑनलाइन चला दिया, उस पर आपको क्लिक्स आ रहे हैं, आपको क्लिक SMS आ रहे हैं, आपको कॉल्स आ रही हैं, तो लीड एक्विजिशन हो रही हैं। उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन है कस्टमर केयर पे जो उन सवालों के जवाब देगा, कौन है जो कस्टमर से बात करेगा, कौन है मेरा SME, सोशल मीडिया सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कस्टमर को कन्वर्ट करेगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। कैंपेन लॉन्च करने से पहले हमें हमारे प्रोडक्ट के, कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम कस्टमर को बाद में कन्वर्ट कर पाए। बहुत सारे बिजनेस में, ये स्टार्टअप्स के साथ नहीं है, बहुत वेल एस्टेब्लिश बिजनेस के साथ भी है, कि कस्टमर ब्रांडिंग से, मार्केटिंग से, एफर्ट से चला जाता है और बाद में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फीडबैक लेके वापस आता है, एंड वाउ नॉट टू रिटर्न टू इट। और वो वर्ड ऑफ माउथ से वो 10 लोगों को और मना करता है जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान, आपको पता होना चाहिए किसको टारगेट करना है, किस लिए टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या अचीव करना है, कितने कस्टमर मुझे लेने हैं, कैसे लेने हैं, उनसे क्या बात करनी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, जेस्टेशन प्रोसेस होता है, कस्टमर ने आज इंक्वायरी करी है, कल वो आपसे PDF मांगेगा, कुछ प्रोफाइल मांगेगा, आपके वेबसाइट का एड्रेस मांगेगा, या आपसे कुछ और ब्रोशर मांगेगा, फिर वो उसको पढ़ेगा, हो सकता है वो आपसे सवाल पूछे, हो सकता है कंपेरिजन करे, आपसे कहेगा कि यार मार्केट में जो और मेरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपेरिजन करके बताओ। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कई बार फोन पे होती हैं, कई बार आमने सामने होती हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चैनल ले रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट ये सारी चीजें, ये सारा लिटरेचर, ये सारा कंपैरिजन कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेहतर है, उसकी क्या USPs हैं, इमीडिएट कॉम्पिटिटर कौन है, उसके साथ आपने कंपैरिजन करके बना के रखा हुआ है, वो लिख के रखा हुआ है, सिंपल PDF बना के रखा हुआ है कस्टमर को WhatsApp पे भेजने के लिए या समझाने के लिए, तो वो कर लेना चाहिए। और आई टेल यू व्हाट, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री, इन द सेल्स एंड मार्केटिंग लास्ट 20 years और मोर। इफ यू कैन नॉट convey your thing in 2 minutes, 1 minute, 1.5 minute, 2 minutes, you're done for। जब मुझे इसका इनवाइट आया था तो मैं सारे कंटेस्टेंट्स को स्टडी कर रहा था, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल जहाँ जहाँ अवेलेबल थे स्टडी कर रहा था, तो दिस लेडी, वो कैमी सलोनी, तो उनके अपने प्रोफाइल पे लिखा हुआ था च्यवनप्राश फॉर एनिमल्स और लाइफ स्टॉक। तो मुझे समझ आ गया कि वो क्या बनाना चाह रहे। अगर आप अपना कैंपेन में टैगलाइन जोड़ सकते हैं, या आप अपने आप को इतना अच्छा से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप 2 मिनट में कस्टमर को बता पाए कि आप क्या हैं या उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी A4 की शीट चाहिए या 5 मिनट चाहिए, तो ट्रस्ट मी, यू आर लूजिंग अ कस्टमर। 30 seconds to 2 minutes is the attention span that you will get. No matter you are offline, online, कैसे भी कर रहे हो। आप अमिताभ बच्चन को खड़ा कर रहे हो तो वो भी लाइन शुरू करते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो की दवा। ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट तक बोलते हैं और फिर बताते हैं कि किस लिए आए। बिल्कुल नहीं। बहुत स्पेसिफिक डिलीवरेबल गोल्स होने चाहिए। अगर आप स्टैंडीज भी लगा रहे हो, मार्केटिंग कैंपेन भी कर रहे हो, तो बड़ा बड़ा आपका ब्रांड और वो क्या करता है पता होना चाहिए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो अच्छे से दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्या कर रही है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। देन ऑब्वियसली एट द फाइनल स्टेज यू एक्वायर कस्टमर्स एंड यू इवैल्यूएट रिजल्ट्स। आप अपने MIS वगैरह बनाते हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि यार मैंने इतने पैसे लगाए थे, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये आया है, इन चैनल्स पे इतने पैसे खर्च हुए हैं। एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, नो साइज फिट्स ऑल। आपको बार बार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। Please don't think that any customer acquisition plan or a marketing plan is cast in iron.
आपको उसको टाइम टाइम पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के साथ काम करता हूँ, ग्रेन के और राइस के एक्सपोर्टर्स के साथ। अब वर्ल्ड एक सिचुएशन ऐसी है, यूक्रेन वार हो गया, फिर अभी पैलेस्टाइन वार हो गया, ग्रेन का एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो फिर काम बंद कर देंगे। राइस का एक्सपोर्ट, बासमती का एक्सपोर्ट बंद है, तो काम बंद तो नहीं कर देंगे ना, कुछ और करेंगे। कोई बाय और बाई रेज होंगे। डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चैनल्स के साथ करेंगे, गवर्नमेंट अप्रूव लिस्ट में करेंगे, गवर्नमेंट साइलोज के साथ करेंगे। आपके पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए, आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने प्लान में कि अगर एक चीज नहीं चल रही है, और मे बी यू हैव हायर्ड द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स एंड द बेस्ट ऑफ द पीपल, और बेस्ड ऑन योर बेस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आपने एक मार्केट में प्लान डाला, आपने एक कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी डाली, बट फॉर सम रीजन वो नहीं चल रहा, तो क्या करें? उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, वो एवेल्यूशन होनी चाहिए। हम हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते। वी आर नॉट अ कॉर्पोरेट कि यार एक क्वार्टर के बाद डिसाइड करेंगे कि एक क्वार्टर में वो घाटा हो गया, चलो देखते हैं क्यों घाटा। वी आर स्टार्टअप्स, बहुत लिमिटेड पैसे के साथ, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के पास तो शायद एक साल से ज्यादा का रनवे भी नहीं हो। रनवे इज बाय द वे दी मनी थ्रू विच यू कैन ऑपरेट विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, ग्रांट या किसी और चीज के बिना। तो आपके पास खुद के पास कितने पैसे हैं, या किसी से ग्रांट मिली भी है तो कितनी बची हुई। सो हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं होती है यार, और होनी भी नहीं चाहिए। मतलब स्टार्टअप का फायदा ये है कि हम बहुत ज्यादा फास्ट पेस होते हैं, और इसलिए हम कॉर्पोरेट से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स निकाल के देते हैं। समटाइम्स स्टार्टअप्स डिलीवर बेटर रिजल्ट्स देन दी एस्टैब्लिश्ड पेस, बिकॉज वो उतने ज्यादा फास्ट पेस और एजाइल होते हैं। सो मार्केटिंग प्लान बना दिया, उसको कॉन्स्टेंटली एवेलुएट करना जरूरी है। कस्टमर एक्विजिशन में हो सकता है आपने 4 डिफरेंट प्लान्स डाले लेकिन 3 बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, तो डोंट हैव अ डेड वेट ना, जस्ट बिकॉज समबडी इज सेइंग, या सारी दुनिया के लिए वो प्लान काम करता है। इवन इन द सेम इंडस्ट्री, इन द सेम कंपनी, एक कंपनी के लिए अगर एक चीज काम कर रही है, जरूरी नहीं है दूसरी कंपनी के लिए भी करे। सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट अबाउट इट, एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक ऑन योर फीट कि हमें क्या करना है और कैसे नहीं करना है, टू मिनिमाइज योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। And I hope I'm making sense here because nobody's saying anything. All right. So what are the benefits of customer acquisition? We all understand. Company growth करती है, revenue बढ़ता है, repeat customers आता रहता है, बार बार revenue बढ़ता है, marketing पे कम cost होता है, repeat customer होगा तो market पे कम cost होगा, अच्छा value उसको मिलेगा, बार बार आएगा, wow customer है, word of mouth करेगा तो और ज्यादा customers को लेकर आएगा। आज जो customer acquisition cost हमारा आ रहा है, एक साल बाद वो नहीं आएगा, वो कम आएगा। The beauty of it is कि customer acquisition cost हमेशा नीचे जाता रहता है unless and until you have opened a new territory or a new product. सेम स्टडी बिजनेस के साथ जनरली आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर द ईयर नीचे ही आता जाता है। तो कंपनी ग्रोथ होती है, रेवेन्यू बढ़ता रहता है, सेल्स बढ़ती है, एंड ऑफ कोर्स ब्रांड अवेयरनेस तो बढ़ेगी। बट इफ यू डोंट डू इट प्रॉपरली, इफ यू डोंट ध्यान नहीं रख रहे हो, या आपने कोई चीज ओवरलुक कर दिया, बैड कैंपेन है, तो बैकफायर भी कर, बैड नेम भी बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि हम एग्री स्पेस में काम कर रहे हैं, फार्मर्स के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और यू नो अच्छाई लोग शायद 10 बार भी किसी को नहीं बताते, लेकिन बुराई बहुत जल्दी बताते हैं। बहुत थोड़ी सी इमोशनली चार्ज्ड कम्युनिटी है, तो अगर आप कुछ गलत कर दोगे या आपके थ्रू कुछ गलत हो गया तो बहुत जल्दी बैकफायर हो जाएगा। इसलिए अच्छे से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर, स्पेशली अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तो उसका रिसर्च, उसकी इवैल्यूएशन होनी बहुत जरूरी है। रश करने की जरूरत नहीं है यार, जस्ट बिकॉज कि हमारे कॉम्पिटिटर ने, किसी ने एक प्रोडक्ट डाल दिया है या मार्केट में कोई चीज चल रही है, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें रश करने की जरूरत। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं आज डिजिटल स्पेस में हूँ, सपोजिटली मेरे पास 10 लाख कस्टमर है, हमारे साथ एक और कंपनी शुरू हुई, उसके पास 20 लाख, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का अपना पेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंपनी को पहले फंडिंग मिल गई, मुझे नहीं मिली, सो व्हाट। इस रश में हम जल्दी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, which lead to a fatal mistakes, जो बिजनेस के लिए बहुत खराब है। अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है बिजनेस में, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अपने कोर्स करेक्शन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। But one thing which I also wanted to say, which I have not touched upon, is that don't limit yourself. Just because मैंने कह दिया कि ऑनलाइन पे ज्यादा करना है, ऑफलाइन पे करना है, या आपने किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया को हार्ट में करना है, तो जरूरी नहीं कि वही चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ भी चल सकता है। एफ मेरा प्लेटफॉर्म है, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, हम एग्री इकोसिस्टम एनेबलर है, हम सब काम करते हैं। हम फार्मर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, हमने 40,000 फार्मर्स ट्रेन किए। हम लोगों के फील्ड इवेंट्स भी करते हैं, हम लोगों के लिए पंचायत इवेंट्स भी करते हैं, हम लोगों के लिए
प्रोडक्ट लॉन्च भी करते हैं, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, हमारा एग्री मीडिया कंपनी है, 10 लाख फॉलोअर्स है, मैं 1 करोड़ से ज्यादा की सेल्स इंक्वायरीज हर महीने जनरेट करता हूँ। तो लोगों ने कहा था यार तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, या तो एग्री मीडिया करो या तो ई कॉमर्स करो। हमने कहा हम दोनों करेंगे। फिर हमने फिजिकल इवेंट्स करने शुरू किए, फिर हमें पता चला कि यार फार्मर्स को कनेक्ट तो बहुत जरूरी है, और हमारा फार्मर कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमने किसान मेले लगाने शुरू कर दिए नॉर्थ इंडिया। इस देश में किसान मेले या तो बहुत बड़ी कंपनियां लगाती हैं, या एग्री यूनिवर्सिटीज या इस तरह के लोग लगाते हैं, हम लगाते हैं बहुत छोटे ब्लॉक लेवल पे लगाते हैं 5-7 हजार किसानों के साथ। बट वी हैव गॉट अ ट्रमेंडस रिस्पॉन्स। आज देश की कोई बड़ी एग्रीटेक कंपनी, बायोफार्मा, वेट फार्मा कंपनी नहीं है, कोई सीड कंपनी नहीं है, कोई पेस्टिसाइड कंपनी नहीं है जो हमारे साथ पार्टिसिपेट ना करती है। For full 2 years, we were struggling to call their local area sales managers कि सर बात सुन लो, हमारे साथ आ जाओ प्लेटफॉर्म पे। मतलब बहुत बहुत टेंट्रम करते थे। इवन दो वी हैड दी नंबर्स विद अस प्लेटफॉर्म पे, मतलब एग्री मीडिया पे 10 लाख लोग हैं मेरे साथ, ऐप पे 4 लाख लोग हैं मेरे साथ, उसके बाद भी टेंट्रम करते। देन वी वेंट टू फुल फ्लेज्ड इनटू द इवेंट्स। हमने किसान मेले लगाने शुरू किए। आज नेशनल सेल्स हेड्स कंपनीज के मुझे फोन करते हैं कि राहुल नेक्स्ट इवेंट का एक बार कैलेंडर भेज दो। जो उनको पता है उनकी लिमिटेशन है कि उनकी कंपनी हर गांव में, हर कस्बे में नहीं जा सकती। बड़े किसान मेले दिल्ली में लगता है तो पूसा में लगता है, हरियाणा में लगता है तो हिसार में लगता है, पंजाब में लगेगा तो शायद चलो पीएयू में लग जाएगा, लुधियाना में लग जाएगा, तो फिर केवीकेज में लग जाएगा, बट इससे ज्यादा नहीं लगेगा। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं। नोबडी डेयर्ड दिस, वी डिड। डोंट लिमिट योरसेल्फ। ब्रैग नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स काम किए, बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू किया और बहुत ज्यादा काम किया। जब हमने शुरू किया था ना, हमारे पास पैसे नहीं थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं। किसी ने कहा क्या करोगे, हमने कहा यार किसानों से मिलेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे, सोल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, फिर सोल्यूशन डालें। उन्होंने कहा कितने लोगों से मिल लोगे, क्या करें? तो वन ऑफ द गाय केम एंड सेड कि सर एक काम करते हैं, गूगल पे जाओ, गूगल जीमेल अकाउंट पे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड करो एक्सेल में। हम 4 लोग थे, हमने कर लिए, हर किसी के हजार हजार कॉन्टैक्ट थे। एक एक को कॉल किया बैठ के कि आप हम आपके गांव में आए। पहले तो सारे काट दिए जो शहर के लोग थे, अलग कर दिए, आधे हो गए, 70% अलग हो गए। अब गांव के लोगों को फोन किया, जी हमारे पास पैसे नहीं है इवेंट करने के कि हम टेंट लगा के 200 लोगों को एड्रेस कर सके और चाय वाय नहीं पिला सके, हम आपके घर आना चाहते हैं। क्या आप अपने आसपास के 20 लोगों को बुला के रखोगे? क्या आप अपने घर में हमें एक कमरा या घेर में एक जगह दे दो कि हम 20 लोगों को एड्रेस कर सके? वी वांटेड टू एड्रेस 20 पीपल, कैन वी कम टू योर हाउस एंड डू दैट? एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग आवर contacts. We downloaded these contacts through Gmail app. I have got 70 people ready, and I list down their names, address कि कहाँ पर हैं, and then somebody else, we merge those Excel sheets, 200 names. There are about 50-40 odd locations. We formalize a calendar. Calendar बन गया। इस डिस्ट्रिक्ट में ये 10 लोगों के घर हमने जाना है। 5 of us, 5 different cars reached there. Every house we got 20 people. We managed them, we convinced them, we understood with them. We didn't spend anything on that. And out of those 20, 10 were agreed कि I'll call up my relative in that particular village. You go and meet 20 more. And you will not believe, through this chain, we have met more than 1 lakh people. And we have not spent anything on any event. People just call us. They became your brand ambassadors. Hey, this is this FTDF guys. They are starting. These are the farming background, and these are the chaps. They wanted to do something good. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार. Please hold them. Every village we found a place to organize our meeting. And by the way, we have covered at least 14 states and union territories through this. We have met 1 lakh people through this approach. So nothing is impossible. Don't limit yourself. An entrepreneur, a startup, owner is the most dynamic guy in this country. Trust me when I'm saying this. So we've seen the funnel. How does it work? How it actually should happen. We have to attract someone. We have to convert it. We have to close it. And then our customer experience has to be so good that a delight customer through word of mouth becomes our promoter. And I give you a very classic example, Apple. iPhones. The iPhone users always brag about it, about the user experience, about the product they have. You will not see an Apple product recalling their products. This is the journey. It's an ideal journey that we have to, customer acquisition, go attract, convert, close, visitor, leads, customers. तो फाइनल गोल है ना ये प्रमोटर वाला, ये हम मिस कर देते।
a good customer acquisition process should include or should conclude at this stage. No matter you're approaching your customer through online or offline, whatever you're doing, you have to make it and bring it to a delight that it's a repeat customer. This should be our goal. And this should ideally be a goal for every other activity as well. So now that it's been an hour, the art and science of efficient customer acquisition is a mix of finding the right untapped and scalable channels where you can target customers in your segments that are ready to buy by the triggers you discovered. आपने आइडेंटिफाई किया कस्टमर को, उसके ट्रिगर को आइडेंटिफाई किया, आप उनको सेगमेंट में टारगेट कर रहे हो और वो राइट कस्टमर है, वो गलत कस्टमर नहीं है, अनटैप्ड है, आप उसको ले आए और आप उसको स्केल कर सकते हो. And it's a repeat customer, not a random customer. And if you can do that and achieve all that, that's the art and science of efficient customer acquisition. Thank you. Somebody in the start was saying something about the customer acquisition. I believe it was Saloni. Saloni, have I answered you, or do I go ahead and show you some more examples and some more activities that we do? Please respond. I think we have discussed most of the key points. And think for B2B, what we have yet to cover, I think if you can just sum up, is different approaches we could have for B2G as an B2G? acquisition. Yes, yes. B2G But will take another session. you have, yes, but you have given us hints that if we fit in the requirements, we can do it. So if there's Okay, anything more. I'll show you a sample, at a very micro level, plan, customer acquisition plan that we have created. Okay. It was a startup. Mm. It was a US-based startup in a very niche category. Okay. So there are challenges that company was US-based, so the farmers are very skeptical about it. There's a बाहर की company है, dealing in a very niche product, तो बहुत ज़्यादा scale पे उसकी sale नहीं हो सकती थी. In an area which is already controlled by the government, कि उसकी supply side government के पास थी. Yeah. For a technique which is not widely common, market में आज भी 90-95% वो technique नहीं चलती है. Even though the technique was developed by some other, and then in India, पूसा ने भी उस पर बहुत काम किया है. So, and somebody was also asking कि यार हमें B2B लेना चाहिए, B2C लेना चाहिए, या हमें ऑनलाइन ज्यादा लेना चाहिए, ऑफलाइन ज्यादा लेना चाहिए. So, and B2G में भी B2G को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, सलोनी जस्ट सेड. सो मैं क्विकली आपको एक एक्सेल दिखाता हूँ जो हमने मार्केटिंग प्लान फॉर्मुलेट किया था कि कैसे हमने कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया. वो द प्रोसेस इज स्टिल इन द एक्शन, बट आई जस्ट क्विकली 1 minute आई शो यू कि हम कैसे कर रहे थे उसका. I think my screen is visible. It is, or just a sec. Can you see my screen? Yes, we can. Okay. So this was the activity. We wanted to, fighting a lot of stereotypes. Technique nahi thi, company nahi thi, technology nahi thi. So, which is common for a lot of startups. और farmers को बात कर रहे थे, तो online ज़्यादा करें, offline ज़्यादा करें, B2B करें, B2C करें. तो we wanted to come up with a solution कि वो B2B, B2C दोनों में setup हो, वो farmers को पहुंचे, और हम कंपनी को भी प्रमोट करें, हम टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करें, और हम प्रोडक्ट को भी प्रमोट करें. So we started with a teaser launch, simple 2-3 teasers per week. प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में बता रहे थे, क्रिएटिंग अ क्यूरियोसिटी एंड हाइप कि हम क्या बात कर रहे हैं. फिर डिटेल्ड वीडियोस अबाउट द कंपनी इंट्रो, एंड डल वीडियोस जैसे कंपनी के होते हैं 3-4-5 मिनट के कि यार ये कंपनी है, ये करती है, ये ऑफिस है. नथिंग फैंसी अबाउट इट. देन वी रोप्ड इन द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर कम्युनिटी. वेबिनार्स करवाने शुरू किए, उसको टेलीकास्ट करना शुरू किया, लोगों को इन्वाइट करना शुरू किया, बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन करना शुरू किया, ऑनलाइन ऑफलाइन वेबिनार दोनों की, ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन भी किया, जस्ट टू सी कि कहाँ से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है. देन कम्युनिटी एक्टिवेशन. Now, community activation is something which a lot of companies do. I have missed it on the earlier part. Community is something कि आप जिस प्रोडक्ट में या जिस सर्विस में डील कर रहे हो उसके लिए एक ऑनलाइन कम्युनिटी ऑलरेडी बनी होती है. फेसबुक कम्युनिटीज भी होती हैं, वो गूगल कम्युनिटीज भी होती हैं, वो ऑफलाइन कम्युनिटीज भी होती हैं. यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दोज कम्युनिटीज.
As an F2TF, we run and manage 1700 different companies ranging from all the agri value chain. आप उसमें एनिमल लाइफ स्टॉक की भी बात कर सकते हो, इक्विपमेंट्स की भी बात कर सकते हो, हर तरह की प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, सैटेलाइट की बात कर सकते हो, रोबोटिक्स की बात कर सकते हो, सब तरह की। We run 1700 different communities with a combined, and इसमें ओवरलैप है 17 करोड़ पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया से 17 करोड़ लोग हैं जो उन कम्युनिटीज के मेंबर। सो देन वी एक्टिवेटेड दोज कम्युनिटीज की और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देन देयर आर लोकल इन्फ्लुएंसर्स, आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, उसका जो टारगेट मार्केट है, जो टारगेट सेगमेंटेशन है, जो टारगेट एरिया है, वहां पे लोकल इन्फ्लुएंसर्स को खड़ा किया, दे टॉकिंग स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस, थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया, पोटेंशियल क्लाइंट से बात करनी शुरू करी, कैसे उसका हाइप क्रिएट किया प्रोडक्ट का कि नई चीज आ रही है। देन देयर आर सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑन प्रोडक्ट यूएसपी, ऑनलाइन चैटर क्रिएट किया कम्युनिटीज में, रोज उन पे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, पीपल पोजिंग क्वेश्चंस, वी आर आंसरिंग, ग्राउंड पे लोगों में बात हो रहा है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट इन्फ्लुएंसर टॉक्स, पीक डिमांड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी कि ओके देयर इज समथिंग, एंड दैट विल हेल्प यू। जो फेंस सिटर्स होते हैं ना, जो बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं, दे विल जंप इन फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स को तोड़ने वाली बात हो रही है। एंड देन वी ऑर्गेनाइज द फार्म विजिट्स, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स, पोटेंशियल क्लस्टर्स के साथ प्रोडक्ट डेमो लगाना शुरू किया। एक बार प्रोडक्ट डेमो लग जाता है तो आधी चीजें आसान हो जाती है। फिर आप जो जिन कस्टमर्स को टैप करना चाहते हो उनको विजिट करवाते हो, उनकी टेस्टिमोनियल शूट्स करवाते हो। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन बुक दीज थिंग्स। जहां पर जब आप वेबिनार्स करते हो तो आप गवर्नमेंट साइड को भी इंक्लूड कर लेते हो, आप उनके एक्सपर्ट्स को बुला लेते हो। तो अगर आप B2G टारगेट करना चाहते हो तो यू हैव टू ए सी के उसकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या है, वायबिलिटी क्या है, उसकी यूजफुलनेस क्या है, और उसके साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स को लाकर उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स लगा सकते हो, उसकी यूजर टेस्टिमोनियल्स बना सकते हो, दैट गो वेरी वेल विद द B2G एज वेल एंड अदर B2B सेलिंग एज वेल। सो सपोजिटली आपने एक टेक डेमो करवाया, आपने वहां से पूछा कि 2-3 एक्सपर्ट्स को बुलाया, यू हैव अ वेबिनार who are talking about the product and technique in general, and then you are also chipping in and talking about your product. It goes a long way in our B2B sales as well, and in B2C as well. Farmers generally believe the government service. So this is just to show you what we do and how we do, and how can you also do. I think I have covered mostly, and I'm happy to have any questions if you have any questions. Thank you. I think the process and the approach is very, very clear. Thank you so much. Thank you. Anyone else? Please share your number, sir. My number. Okay, I'll just write in a chat box. All right, my email and my phone number in a chat box. Everyone can see to it. Anyone else? If no, Manisha, I think I'm done. Okay, right. So I'll take ahead from here. So if there are any one of you have any questions, please go ahead. I think because it has been really interactive, so they already asked whatever they wanted Manisha, to there ask. are only two ways. There are only two ways. A, it's a Yeah. bouncer, goes over the head, so there are no questions. Or B, it's very well informed and very well participated, so nobody has a question. And I think it's a later one as well. No, Actually. I believe it's the latter one. It's the second one. Sir, I have a They've question. understood like. Oh, you have a question? Yeah, Yes, please, Chandrasekhar ji. Yeah. सर, हमारी जो मशीन है उस मशीन को हम लोग चाहते हैं कि किसान को बेचें। वो मशीन से वो लोग क्रॉप रेसिड्यू को काट सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और वो लोग उससे उनका इनकम होगा। तो हम चाहते हैं सर, वो हम किस तरह से मार्केट करें वो जानना चाहते हैं सर। कंपटीशन क्या क्या है आपका? सर कॉम्पिटिटर हमारे सर कॉम्पिटिटर पूजा डिकम्पोजर ही है हमारा। और पूजा डिकम्पोजर वैसे उतना पूजा डिकम्पोजर ही है हमारा कॉम्पिटिटर। और एक SRI मशीन है जो IIT रोपड़ ने बनाया है, पर वो 5.5 लाख की है लगभग कॉस्ट उसकी। तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है फार्मर्स के लिए, तो आपके उसको हम कितने की है? कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं जी। आपकी कितने की? आपकी कितने की? हमारी सर 1 लाख के अंदर में है। एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। आप 1 लाख का सामान बेच रहे हो और सरकार 5 लाख का बेच रही है ना, तो सरकार जी, अपने सामान पे 65-70% की सब्सिडी डाल देगी और वो आपके बराबर ले आएगी। और उसके बावजूद भी अगर पूसा का डिकम्पोजर नहीं बिक रहा है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल फार्मर उसको खरीदने की
अभी मंशा नहीं बना रहा है, मे बी ही डजंट अंडरस्टैंड, मे बी ही थिंक्स कि इतना पैसा मेरे लिए वायबल नहीं है, मैं जला लूंगा और मेरा काम चल जाएगा पराली को। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एनजीओज, लॉट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज हैपनिंग जो कि सीएसआर के लिए ये पराली जलाने का कोई और सोल्यूशन दे रही हैं। तो किसान को लगता है कि मुझे इस पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की देश में करंट सिनेरियो में इंडिविजुअल फार्मर का इसको खरीदना इज अ चैलेंजिंग थिंग। ये चीज B2B सेल्स के थ्रू बहुत ज्यादा जा सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसकी सीएसआर ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है इसका सीएसआर, जहां पे आप ये सोल्यूशन किसी एनजीओ के साथ, किसी डिपार्टमेंट के साथ, किसी बड़ी कॉर्पोरेट के साथ गांव में सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपनी मशीन बेच सकते हो, उनका सीएसआर हो जाए। बट आप ये कह रहे हो कि आप डायरेक्ट B2C करो, आई सी अ लॉट ऑफ चैलेंज इन दिस। Sir, sorry to interrupt. So, yeah, please go ahead. Yeah, Chandrasekhar, we can connect because we are also biomass supply chain. So we can go for, you can connect with companies which are on the biomass supply chain, because we are facing problem in collecting the biomass from, and if you are providing a solution, we can connect for that. From Yes, there. yes, please WhatsApp me. I'm in the group. Oh, sure. So my question is not completed, and can I ask it if Yeah, please. Yeah. So so I want to know what are the challenges that you have said now in B2C, because the reason why I'm providing because the reason what I'm providing to the farmers, why they should buy my machine, is that because they will have an extra income, and they will not have to put extra cost to the petrol or anything, to cut the crop residue that is been left. And for that, we are not charging they will not be having anything to spend something more extra. Only they have to buy the machine and they can have this. So, and even they can have an income growth by selling the crop residue even. And we are trying to divert this crop residue into ethanol factories for energy sector. So I want to know the challenges, and also the crop, we have said about CSR. What are the companies who are doing this, all these things? ओके चंद्रशेखर जी, एक बात बताइए, आपने भी कुछ कस्टमर रिसर्च किया होगा, लोगों से मिले होंगे, व्हाट आर दे से अबाउट बाइंग अ 1 लाख रुपए मशीन फॉर पराली और द क्रॉप रेजिडुअल और वेस्ट, व्हाटएवर यू कॉल इट? सर, हमने फार्मर से बात किया, और फार्मर सर एक एकड़ में लगभग 2 से 3 टन का क्रॉप रेसिड्यू निकल जाती है। अगर हम एक टन को 1500 से 1800 अगर मार्केट मैं रेट वो नहीं लेते कह रहा हैं, चंद्रशेखर जी, तो मैं ये कह रहा 18 हूँ 1 लाख रुपए की मशीन बाय करने पे किसान क्या कहता है? सर वो लोग रेडी हैं। हमने काफी बात किया, बहुत लोगों से बात किया, वो लोग रेडी हैं, कह रहे हैं कि अगर वो साल के लगभग 5 से 6 हजार रुपये सिर्फ क्रॉप रेसिड्यू को बेच कर कमा सकते हैं, तो 5, अगर वो सब्सिडी के साथ अगर देखें तो शायद 50-60 हजार की वो मशीन हो जाएगी मार्केट में, अगर गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड सब्सिडी है कर देती है तो। प्रोडक्ट पे सब्सिडी है? सर अभी तक तो नहीं है सर। आपके प्रोडक्ट पे नहीं है या इस सेगमेंट में ही सब्सिडी नहीं है? सर स्टिल हमने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया उतना, सो हम ऐसे कुछ बोल नहीं पाएंगे, बट हमने नहीं जाना, एक्चुअली वी डोंट नो द प्रोसेस हाउ टू गेट द सब्सिडी। कनेक्ट विद मी, अगर प्रोडक्ट पे सब्सिडी है इस सेगमेंट में तो सब्सिडी लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, because there are so many machines, sir. Happy Initiate कर seeder machine is there. Yes, yes. मैं यही कह रहा हूँ कि अगर Yes, yes. सब्सिडी अवेलेबल हो सकती होगी तो कनेक्ट विद मी ऑफलाइन और Yes, yes. बात करके देख लेंगे, अगर सब्सिडी की पॉसिबिलिटी होगी तो पेपर वर्क कर सकते हैं। Yes, sir. Sir, it will so thankful, sir. I will try to connect with you for this. Thank you, sir. Thank you. Sir, also, can I say one more question for this? You have said about CSR, the things you have said about the companies who are doing CSR. Can I know which company who are doing CSR, and by them I can connect to them? Everybody doing CSR यार, बट आई थिंक आप अपने पूसा वाले सेक्टर में भी सीएसआर के फंड्स आते हैं, अदरवाइज अगर आप इरमा के थ्रू जाओगे, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के थ्रू, तो उनके पास बहुत सारे सीएसआर फंड्स आते हैं इसी काम के लिए। बट ऑल द बिग कॉर्पोरेट्स यार, चाहे वो धेनुका है या जिस तरह की भी कंपनी है, सबका अपना सीएसआर बजट है। आई थिंक आप कहाँ पे हो, कौन सी स्टेट में बेस्ड हो आप? सर हम दिल्ली में हैं अभी। आप दिल्ली में हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा पंजाब इसकी बड़ी मार्केट है, और पंजाब में रेजिडुअल बर्निंग पे रिलायंस फाउंडेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। इफ यू कैन गेट इन टच विद समबडी फ्रॉम रिलायंस फाउंडेशन, तो वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की मार्केट पंजाब है। Can you connect me to them if there is so? I can look for the number, sir. Yes, I sir. can I look for would. Yeah.
I'm not promising, but I know, so I can Yes, probably look into it. yeah, I got that. What is it? But Yeah. even if on your own, Reliance Foundation is doing a good work in this area in Punjab. Okay. Means I can connect to them if that. Yeah. There is availability of persons and yeah. Thank you. Thank you, sir. Do we have any more questions? Okay, so I'll go ahead now. All right, so I'll be just formally thanking you, sir. So I want to express our sincere appreciation for your enlightening session on the art and science behind the customer acquisition, where you brilliantly delved into this crucial topic, which differs from the traditional marketing practices like you already mentioned, thus like busting a common myth, which the startups were already having. So what made your session even more exceptional was the interactive and the dynamic atmosphere that you created, the way you engaged with our startups and also encouraged them to actively participate, and this whole transformation of the session into a vibrant two-way discussion, I would say. It's like showcasing the master campaign also was also a great catch. So this open dialogue allowed us perspectives, raise questions, and also contribute their unique insights to the discussion. Your talk deeply resonated with our startups as you address their challenges and opportunities in acquiring and retaining customers in their ever-evolving, their respective business landscapes, I would say. So your talk resonated strongly with our startups that are looking to establish their presence and impact in the market. Furthermore, your discussion on creating a marketing plan, which I believe was particularly insightful, and I'm sure that our startups now possess these kind of knowledge and tools to strategically map out their customer acquisition journey, ranging from the funnel, addressing the pain points, and also the triggers effectively. So we would also like to extend our thanks to our startups who attended the session today. Your active participation and engagement always have been essential for making these interactions more valuable and impactful. Your dedication to learning and growth is commendable, and we're excited to see that you really participated very actively today. Conclusion, on behalf of the whole Pusa Krishi team, I extend our heartfelt thanks to today's speaker, Mr. Rahul Dhingra, who shared his experience and inspired our startups today. Your session was really relevant to their mission to make a positive impact in their respective crucial industries. With a deeper understanding of the customer acquisition funnel, creation of a strategic marketing plan, I would say, and also, within a backdrop of highly interactive and engaging discussion. So what we learned today is like what is not actually required instead of what is required in their plans. So through the working in the same industry, I mean, though if they work in the same industry, so like you already mentioned, like some startup can have a different plan from the other startup. No, not everything works out for everyone. So they need to be fast paced and also quickly adaptable to these things. So your contribution to our SHITIJ cohort journey is highly appreciated, sir. And your insights have been undoubtedly, I mean, they've been playing a vital role and a pivotal role as well in shaping the new startups batch futures endeavors. So thank you for your time and the wisdom that you imparted, sir. Thank you so much, Rahul, sir, again. Thank you so much, and thank you to the participants. Have a wonderful day. Bye-bye. I think Harshit already has raised hand. Can you take one more if you can? Yeah. I'm sorry, I know, understand, like no, more than 1 hour. Please. It's been. No, I was just clapping. There's Harshit, no question. please. No, I have no question. I was just. Also, that was. Yeah. He was clapping. Okay. Thanks a lot. Thank you, Harshit. Thank you so much. All right. Thank you, sir. Thank you. So yeah, okay. Thank you so much, sir. Thank you, Rahul, sir. Thank you, sir. I would request all the participants to stay with me for a minute. So yeah, tomorrow we will be meeting you all at, we'll be starting at 10. So depending upon the slots that you've been provided, please go through the schedule and get back to us. I'll be calling Ranju as well because I think she asked me to, connect to her. Also, tomorrow we will have sessions, the one-to-one thing from 10 to 1. And then we will have this particular session kind of thing from 2. And tomorrow it will be a very important session like today as well. So tomorrow Dr. Neeru Bhushan will be there, who is, I would say, the mother of this whole Pusa Krishi. Like she was the one who initiated and done everything for the incubator, right? So, okay. So we will see you tomorrow from the morning till evening. All right. Have a great evening, everyone. Take care. Thank you.